एक ही पेज को दो बार लेके आपने पीडीएफ बना दिया, क्वेश्चन आंसर वाला पेज नहीं है इसमें, या एक ही पेज में किया है आपने? चेक इट वंस ओनली, यू हैव सेंट मी सेम पेज ना। अनटर्न, मेक द पीडीएफ अगेन एंड देन सेंड. So in this particular topic we will definitely going to discuss the vacuum pump rating and how the air cooling effects over the vacuum pump rating. Vacuum pump rating, as I have already told you, that it is something, is the efficiency of the pump which is used for creating vacuum. And the vacuum, you know that the whatever the pressure which is below than the atmosphere is known as vacuum pressure, and to make that vacuum pressure a pump is used which is known as the vacuum pump. So let us start with the things. These are the different topics we have to discuss: calculation of the effect of air cooling, then vacuum pump rating, then cooling water system, and then cooling towers. So air cooling and its effect and vacuum pump rating, you know, the rating is somehow has a different parameters, and definitely we will go through one by one. And cooling water system, you all know that whatever the water which is used to cool down the steam or to condense the steam into the liquid, and to do so cooling water is required, and how this water works inside the system is known as the cooling water system. And to perform in this function, high towers are made, either they are made by the metals and they can be made by the concrete also. In all types of thermal power plant, like NTPC power plants, and they all are having a very high concrete structure, and they are known as the cooling towers. So gentlemen, now if we calculate the effect, or if we will see the effect of the air cooling on the pump rating, as I have already told you, vacuum pump is the air pump which removes the air from the condenser to create the vacuum inside the condenser. And what will happen with this vacuum, because it is at a low pressure, then the steam from the turbine can easily come to the condenser, and this pressure is low, that's why the steam can more expand in turbine also, and it increases the efficiency, as I have already told you. The efficiency of the pump is basically a ratio. It is a ratio of actual vacuum produced at steam inlet of condenser to the condenser, and the difference between the biometric pressure and the absolute pressure of the steam. So let me explain it. Actually, अगर आप देखें तो ये दो काम कर रहा है, मतलब कि ये एक तो स्टीम को ले रहा है टरबाइन से, और दूसरा ये स्टीम को मतलब कन्वर्ट कर रहा है वाटर में, और फिर उसके बाद ये वाटर को आगे हॉट वेल में जाके, जो स्टोरेज हाउस है हॉट वेल एक तरह का, उसमें जाके ये सप्लाई कर रहा है. तो बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम है जो स्टीम इसने टरबाइन से ली है उसको, उसका फेस चेंज करना. तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो निकाली जाती है कि इसने जो कंडेंसर का जो इनलेट है, वो पॉइंट जहाँ पर स्टीम कंडेंसर के अंदर आ रही है, वहाँ पर कितना वैक्यूम जो है वो प्रोड्यूस हुआ, और
जो स्टीम का एब्सोल्यूट प्रेशर है, मतलब जब स्टीम बाहर जा रही है, और बायोमेट्रिक प्रेशर जो है, बायोमेट्रिक मतलब एयर प्रेशर जो है, उसके बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का जो रेशो है, इट इज नोन एज दी एफिशिएंसी ऑफ दी पंप। तो जो वैक्यूम प्रेशर है उसको आप जितना रखेंगे या कैसे रखेंगे वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि स्टीम कंजप्शन कितना हो रहा है, स्टीम का टेम्परेचर क्या है, और स्टीम का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है। ये सारे पैरामीटर्स हैं, स्टीम कंजप्शन, टेम्परेचर ऑफ स्टीम एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द स्टीम, जिनको अगर हम वैक्यूम प्रेशर को चेंज करेंगे तो इन सारे पैरामीटर्स पर फर्क आता है। और ये जाहिर सी बात है कि एयर कूलिंग जो है, इट विल बी डिक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड इंक्रीजेज द कंडेंसर प्रेशर एंड लिमिट्स द यूजफुल हीट ड्रॉप इफ एयर लीकेज टेक्स प्लेस। और अगर किसी वजह से एयर लीक कर जाए तो कंडेंसर के अंदर जो वैक्यूम बना हुआ है वो वैक्यूम नहीं रह पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो अंदर एयर रहेगी वो अंदर का जो है वो प्रेशर वैक्यूम नहीं होगा, तो उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि यूजफुल हीट ड्रॉप जो हमें टरबाइन में जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, और इसकी वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है प्लांट की ओवरऑल वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये वैक्यूम पंप रेटिंग है, कुछ हमने लिए हैं, जैसे कि रोटरी वेंट टाइप, अलग अलग टाइप के हमने वैक्यूम पंप ले लिए हैं, जैसे रोटरी वेंट टाइप है, इंडस्ट्रियल रोटरी वेंट टाइप है, ऑयल फ्री वैक्यूम पंप है, वेंचुरी है एंड सॉर्प्शन वैक्यूम पंप है। ये कई तरह के वैक्यूम पंप हैं और अलग अलग पैरामीटर्स पे हमने इसको रेट किया है, इनको अलग अलग पैरामीटर्स पे देखा है। तो जैसे पंप ड्यूटी है, जो इकोनॉमी है वो लाइट वर्क के लिए यूज होता है, इंडस्ट्रियल हैवी के लिए, ऑयल फ्री मीडियम के लिए, वेंचुरी हैवी के लिए एंड सॉर्प्शन जो है वो मीडियम के लिए। दूसरा जो है वो कितना मैक्सिमम वैक्यूम वो क्रिएट कर सकते हैं, और आपको पता है कि ये जो प्रेशर है वो टॉर में नापा जाता है, तो यहाँ उसकी रेंज जो है वो अगले उसमें दिखाई गई है कि इकोनॉमी की क्या होगी, इंडस्ट्रियल की क्या होगी। उसके बाद में बताया गया है कि ऑयल फ्री है या नहीं है। वो ऑयल फ्री होने का मतलब क्या है, लीकेज के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर हमने प्राइस के साथ में भी एक कंपैरिजन लिया है, और ये डॉलर्स में है सारे प्राइस। आप देख रहे हैं कि जो इकोनॉमी है उसका नाम ही इकोनॉमी है, तो उसका प्राइस सबसे कम है। फिर आप देखेंगे जो इंडस्ट्रियल में यूज़ होते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े पंप होते हैं, तो उनका प्राइस सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो इकोनॉमी की मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल की मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। अब ऑयल फ्री है, उसमें ऑयल नहीं है, तो उसकी जो मेंटेनेंस है वो इन दोनों से कम है। वेंचुरी की बहुत ही कम है, और सॉर्प्शन जो वैक्यूम पंप है उसकी मीडियम है। तो ये डिफरेंट हमने टाइप्स के पंप ले लिए हैं, और उन पंप के फैक्टर्स के हिसाब से क्या उसकी एफिशिएंसी रहती है, कौन सा पंप ज़्यादा अच्छा रहता है, ये हमने इसका एक डिस्कशन लिया है। नाउ द कूलिंग वाटर सिस्टम। आपको पता है कि हमारे को कूलिंग वाटर की ज़रूरत रहती है, ताकि जितनी भी हीट रिजेक्टेड हो रही है उस सारी हीट को वो एब्जॉर्ब कर सके और प्लांट जो है वो ठंडा रह सके। और वो स्टीम कहाँ जनरेट हो रही है, स्टीम जनरेट हो रही है जब टरबाइन से स्टीम निकल के आ रही है, तब सारी की सारी हीट जो है वो जनरेट हो रही है। तो इस हीट को जो प्लांट में रिजेक्ट हो रही है, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, उसको कम करने के लिए हमें एक कूलिंग वाटर सप्लाई करना पड़ता है। एक तरह का रेफ्रिजरेंट होता है जो कि उस हीट को रिसीव करता है और बाहर चला जाता है। तो कूलिंग वाटर दो तरीके का सिस्टम इसमें यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द कूलिंग पोल, वी कैन यूज़ द कूलिंग टावर। और जो हीट डिसिपेशन रेट है दैट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, भाई किस टेम्परेचर पे हमें वाटर अवेलेबल है। अगर उसका टेम्परेचर हम कम कर सकें और कम कर सकें, दैट इट कैन एब्जॉर्ब मोर हीट। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, यानी कि टेम्परेचर जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसकी वैल्यू कितनी है,
व्हाट इज़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसकी वैल्यू कितनी है, एयर वेलोसिटी कितनी है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कई सारे इसमें हीट डिसिपेशन रेट जो है वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो हीट डिसिपेशन रेट mainly depends upon initial temperature of water, absolute temperature, relative humidity, air velocity, atmospheric pressure. So these are the various factors. So a cooling tower, as I have already told you, it is a arrangement which is having the baffling devices at the inside. तो baffling devices हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो पानी है वो बार बार जो है वो टकराए और बहुत ज़्यादा हीट जो है वो ले ले। तो द हॉट वाटर इज डिलीवर्ड टू द टॉप ऑफ द टावर एंड फॉल डाउन थ्रू द टावर एंड इज ब्रोकन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स व्हाइल पासिंग ओवर द बैफलिंग डिवाइस। तो जो गर्म पानी आया है हमारा, उसको हम टॉप से जो है वो डालते हैं। ये एक्चुअली गर्म पानी का मतलब क्या है कि ये वो वाटर है जो कि हॉट वाटर है और जो कि इस हीट को लेकर गर्म हो चुका है, इसको हम रीसर्कुलेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को आप रीसर्कुलेशन के हिसाब से समझिए कि ये जो हॉट वाटर है ये टॉप ऑफ द टावर से डाला जाता है, नीचे ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है तो ये बैफलिंग डिवाइसेस से जो प्लेट्स लगी हुई हैं उनसे टकराता है, उसकी छोटी छोटी बूंदें बनती हैं। नीचे से जो एयर है वो एंटर करती है, ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है और इस तरीके से उठते हुए वो इस पानी को ठंडा कर देती है। और ये जो पानी है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये हॉट वाटर जो कि सर्कुलेट स्टीम को ठंडा करने के लिए जो सर्कुलेट हुआ है और जो गर्म हो गया है, ये दोबारा से जो है वो गिर रहा है। तो ये जब इस स्टीम के या एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये उसमें से काफ़ी सारी हीट को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और ये जो गर्म एयर है ये कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को भी वेपोराइज कर लेती है, इसलिए हमारे को थोड़ा सा मेकअप वाटर हर बार इसमें मिलाना पड़ता है। तो एयर जो है वो हीट हो जाती है और दूसरे उसमें चली जाती है। तो कूलिंग टावर का अगर आप देखें तो हम कई तरीके से उसको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। किस तरीके का मटेरियल उसको बनाने में लगा है, तो अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ द मटेरियल, बेसिस ऑफ द मटेरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टावर लाइक टिम्बर, कंक्रीट और मेटालिक। देन वी कैन आल्सो क्लासिफाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एयर ड्रॉट, किस तरीके से एयर का ड्रॉट हुआ है, एटमॉस्फेरिक है, नेचुरल है या मैकेनिकल है। मैकेनिकल में फिर हम इसको आगे क्लासीफाई करते हैं, इंड्यूस्ड है या फोर्स्ड है। उसके अलावा हम किस तरीके का फ्लो हो रहा है, उसमें काउंटर फ्लो हो रहा है या क्रॉस फ्लो हो रहा है, जिसको काउंटर या क्रॉस फ्लो या पैरेलल फ्लो, उसके हिसाब से हम बताते हैं। नाउ अगर कूलिंग टावर का अरेंजमेंट आप देखें तो ये कंक्रीट का इसमें दिखाया है, रीइंफोर्स कंक्रीट शेल दिखाया गया है और आप देख रहे हैं कि इसकी हाइट करीब करीब 108 मीटर है। तो यहाँ पर पानी जो है वो हॉट वाटर जो है वो ऊपर से नीचे गिरता है, एयर आप देखेंगे कि साइड से आती है और ये जो वाटर है ये नोज़ल के द्वारा जो है एक नोज़ल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो पानी गिरता है, नीचे से एयर आती है, वो पानी उस एयर की हीट को लेता है और जो है वो पानी ठंडा हो जाता है और इस पानी को नीचे कोल्ड वाटर जो वाटर है हमारा वो बेसिन में इकट्ठा हो जाता है। तो हॉट वाटर हम जहाँ कंडेंसर से हमने स्टीम को कंडेंस किया, उसको हॉट वेल में रखा, उस हॉट वेल में से थोड़ा सा पानी हमने सप्लाई किया, मेकअप वाटर जिसको हमने बनाना है, जिसको आगे जाके हमने यूज़ करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर उसको नोजल के द्वारा स्प्रे किया और ये जो हॉट वाटर है ये ड्रॉपलेट्स में टूटा, एयर से उसने हीट ली, एयर जो है वो बाहर निकल गई, ये एयर जो है वो गर्म एयर हो गई और ये पानी जो है वो ठंडा होकर कोल्ड वाटर बेसिन में इकट्ठा हो गया। तो जेंटलमैन, हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं कूलिंग टावर्स का। और कूलिंग टावर जो है वो मतलब अगर आप जब भी आपने देखा होगा
थर्मल पावर प्लांट, चाहे आप दादरी NTPC दादरी वगैरह के आसपास से गए हों या किसी भी पावर प्लांट के आसपास से गए हों, तो आपने जनरली देखा होगा एक बड़ी सी चिमनी होती है, उसको चिमनी जब आप जाएंगे तो देखेंगे वो बेसिकली चिमनी नहीं है, दैट इज़ ए कूलिंग टावर। तो बहुत बड़ा होता है, मतलब 108 मीटर, मतलब वेरी बिग हाइट। तो इसलिए वो बहुत दूर से भी दिखाई देता है। तो ये सब आज था आपका कूलिंग टावर के बारे में और किस तरीके से कूलिंग टावर यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच।